if we can revise the summary, is divided into holder's book and issuer's books. For holder, it can be either, for the holder, it's a financial asset which can be further classified as fair value through profit and loss account, fair value through other comprehensive income, or fair value, amortized cost. In case of an issuer, first of all, it can be either an equity or a liability. It can either be an equity or a liability. Financial liability or equity. If it is financial liability, there are two liabilities, FVTPL and amortized cost. Amortized cost. We don't classify equity. How will you record this instrument? Let's see. एक्ट बोलता है अगर FVTPL है तो कैसे इनिशियल रिकॉग्निशन करना चाहिए. इनिशियल रिकॉग्निशन करना चाहिए. First of all, when you initially recognize any instrument, how will you record it? FVTPL. एक्ट बोलता है कि initially अगर FVTPL है, it should be recorded at fair value. और FVTPL, FVTOCI है तो fair value. Amortized cost है तो fair value. Expenses on that, exclude expenses. In FVTOCI, include expenses. In amortized cost, include expenses. Initial recognition. Initial recognition should be like this. Now, how do you record a liability FVTPL initially? Fair value, excluding expenses. FVT OCI तो होता नहीं है. Amortized cost, fair value, including expenses. Expenses. Let's take an example. ABC Limited invested in equity shares of XYZ Limited on 1st January 2018, the 1st April. 300 shares at the rate 100 per share with a brokerage of 10%. So how will you initially record the entry? If it is FVTPL trading, let's see. If it is FVTPL, my entry will be investments account debit, expenses account debit to cash. Investment debit at 300 into purchase price 100 rupees and expense at 10%, separately recorded 33,000. Can you see recording the expense separately exclude? Sir, if it is FVTOCI, then the entry will be investments account debit to cash 33,000. Can you refer the theory here? Fair value include expenses. What about amortized cost? Equity share investment cannot be amortized cost. Equity share investment cannot be amortized cost. Cannot be amortized cost.
ये देखो डिफरेंस कैसा है दोनों, इसमें एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करना है, इसमें एक्सपेंस मर्ज कर देना है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा बाय द वे तुम्हारे पेपर में 2 क्वेश्चन आए इस बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, है ना, एक 8 मार्क का और एक लास्ट में 4 मार्क का है। हाँ now shall I value on 31st March? Yes. Now valuation. Initial recognition is over, now valuation. इसके बाद कुछ आपने एक लाइन डिक्टेट अमोर्टाइज क्या, ये अमोर्टाइज कॉस्ट तो इसमें नहीं आएगा, उसके बाद आपने कुछ डिक्टेट किया ना लिखने के I'll tell you. अमोर्टाइज कॉस्ट जो था वो इंस्ट्रूमेंट होता है whereby you held an instrument to collect contractual cash flows. Equity share never have contractual cash flows. तो equity share cannot be classified as amortized cost. वो लिखना पड़ता है, इसमें नहीं लिखना पड़ता है, तो है ही नहीं, एप्लीकेबल तो कुछ करना ही नहीं। do we need to make a note of it or anything? नो नो What is the date today? 26. Now I'll tell you one thing. See, there are 3 types of money you put in. One is the debt investment, one is equity shares, one is derivative. 3 होते हैं. Derivative can be only FVTPL. Debt debentures can be FVTPL, can be amortized cost, can be FVTOCI. And equity share investment can be only FVTPL and FVTOCI. It cannot be amortized cost. They don't have fixed cash flows. Only debentures can be amortized cost. ऐसा क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो। देखो अगर तुम एफए की बात करते हो, अगर तुम इन्वेस्टमेंट्स इन डेरिवेटिव करते हो, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स करते हो, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स करते हो, डेरिवेटिव कैन ओनली बी एफईटीपीएल। देयर इज नो अदर क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल टू इट। डिबेंचर में पैसा लगा, इट कैन बी एफईटीपीएल ऑल्सो। ट्रेड करोगे तो, और दोनों ट्रेड ऑन रखोगे कैश फ्लो के लिए तो दोनों होगा, या खाली कैश फ्लो कलेक्ट करने के लिए रख सकते। एंड इक्विटी शेयर कैन बी एज एफईटीपीएल, ट्रेड करोगे और ट्रेड नहीं करोगे तो एफईटीओसीआई। यानी दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी फर्दर व्यूड इन दिस मैनर। Shall I go for valuation of instrument? Yes. Now how will you value FVTOCI, FVTPL and amortized cost? Once you recorded it ना, एक्ट बोलता है कि FVTPL जो है ना उसका मार्च में वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए। FVTPL का वैल्यूएशन मार्च में फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, एंड दिस फेयर वैल्यू डिफरेंस गोes to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हेंस इट इज नोन एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। करेक्ट। अच्छा, हाउ टू वैल्यू एफईटीओसीआई? एफईटीओसीआई को भी फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए, बट इसका डिफरेंस जो है वो P&L में नहीं जाएगा, बल्कि ओसीआई करके अकाउंट होता है जो न्यू सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है। ओसीआई जस्ट लाइक अ रिजर्व अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, उसमें चला जाता है। थर्ड पॉसिबिलिटी, how will you value an amortized cost? Amortized cost is never valued, it is only carried at amortized cost. Amortized cost is never valued, it is carried at amortized cost. I'll show you some. Now let's continue the same sum.
If it is FVTPL, FVTOCI on March ending, how will I value them? Correct? See, now let's value the same question. Assuming on March ending, 31st March 2019, next year, the fair market value of the share become 100 and it becomes 120. If it is FVTPL, I'll still value it fair value, and if it goes to P&L account, my accounting entry will be investments account debit to P&L account, 300 shares, and my difference will be 120 minus 100, that is 6,000. अगर वो FVTOCI रहेगा तो हाँ, I'll tell you. If it is FVTOCI, then entry will be, if FVTPL तो क्या रहेगा देखो, FVTOCI रहेगा तो क्या करना है, investments account debit to OCI. How much, sir? 300 into 120 minus my initial investment 33,000. 3,000 का डिफरेंस आएगा. क्यों ऐसा क्यों? ये तो 6,300 यहाँ अपने एक्सपेंस को अलग रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे एक्सपेंस मर्ज कर दिया था. चेक द डिफरेंस. ये एग्जाम में भी पहले वाला ही आया था ये. अब भी एग्जाम में फिर वैल्यूएशन फेयर क्लीन डेट दिया था और क्लीन डेट का फेयर वैल्यू दिया था 4 मार्क्स के. मैंने क्या बोला, मैं जितना पढ़ा होता है पढ़ने का बराबर से. फिर जब मालूम ही नहीं तो क्या लिखेगा तू? कितना बचकाना क्वेश्चन थे, पूरा 4 मार्क मिल जाएगा फ्री में. वो दोबारा आपके बैग में नहीं चला गया ना? गया हो सकता है. एक्चुअली आई कैरी डिफरेंट बॉक्स ना, तो दे ब्रीड ओवर देयर, दे कम. हाँ, but the box is fit in that wrapper and all, no doubt, but they linger around there. Actually, from last 1 month they are taking place in our house. पहले नहीं थे, एक भी नहीं था. ये 1 महीने से हो रहा है. कुछ उधर काम चल रहा है ना, उसके we complained also, and we put lot of insecticide also. अभी एक ही रास्ता है, घर छोड़ के जाओ और कुछ नहीं. We created havoc now. मेरे पास है ना एक बहुत अच्छा बंदा है जो स्पेशली कॉकरोचेस के लिए और एग्जाम में ज्यादातर यही आता है, अमोटेस्ट कॉस्ट ही आता है. मोस्टली देखना मेरा चैलेंज है, अमोटेस्ट कॉस्ट ही आता है एग्जाम. तो पास के पेपर देखेगा ना, देखो बहुत सारे अमोटेस्ट कॉस्ट के सम मिलेंगे. ये तुम्हारा पहली बार है FVTPL, करेक्ट. और उसमें सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा है? स्टाफ लोन. स्टाफ लोन सबसे फेमस क्वेश्चन है. वो तो एग्जाम में 7 बार आकर गया, 7 टाइम्स. स्टाफ लोन 8 मार्क का. सो इजी, करेक्ट. हाँ, स्टाफ लोन, उसका नाम ही स्टाफ लोन है. स्टाफ लोन इज एन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली, बिकॉज यू रिसीव फिक्स कैश फ्लोज. कंपनी इशू करी तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैन मीन फाइनेंशियल एसेट ऑल्सो, फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑल्सो. देखो तुम कोई भी सम करो, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी एंड ऑल. लायबिलिटी एसेट से मतलब नहीं है. तुम लेसी का सम करो, लेसे का सम करो, खाली इंटरेस्ट उल्टा सीधा हो जाता है बस. पीवी दोनों जगह आता है. हालांकि वो अलग बात है कि लेसर विल टेक केयर ऑफ यूजीआरबी ऑल्सो, lessee will not take UGRB, वो अलग बात है. but to the extent of MLP and all, things are same. Now, staff loan is a very famous question in amortized cost. Company X has given loan to its staff, क्या रेट पे? 4%, rupees 10 lakh. Next sentence. The loan will be paid in
5 equal installment of principal. Market interest rate is 10% per annum. चलो स्टार्ट करते हैं एंट्री. First of all, for a company it's a financial asset because by giving loan, a company will have a financial right to receive cash from the staff, correct? Secondly, it is FETPL, FETO से amortized cost. It is amortized cost because the company will be receiving fixed cash flows. No fair value is important here. ये कितने बार it's a hot question in the paper. Amortized cost का, correct? So you're recording in the books of company, in the books of X Limited, books of company X. It is financial asset. Further, it is amortized cost. Very important. It is amortized cost classification. Why? Because the entity has an objective to keep the investment till receiving contractual cash flows. Shall I start? Step number 1. Present value of cash flow. Now, can you calculate present value of equity shares? No. That's why equity share cannot be amortized cost. Correct? कोई चीज़ पढ़ोगे तो बराबर समझ में आएगा. पढ़ने का तरीका आना चाहिए और पढ़ाने का तरीका आना चाहिए. कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगी. दूर भागोगे तो समझेगा ही नहीं. Present value of cash flow. Correct? निकालते कैश फ्लो का पीवी. चलो ईयर 1 ईयर 2 तुम एमएलपी का पीवी निकालते हो ना बस. अच्छा सर लोन कितने का है? 5 ईयर बोला तो है. ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5. Now cash flows. Cash flows. Friends, do you agree with me? Cash flow will be 2,40,000, 2,32,000. चेक कर लो भाई. 2,24,000, 2,16,000 and 2,08,000. 8. PV factor, market rate of interest 10%. Then you get PV of cash flow. Be ready with the answer. Eight five four seven one. बिल्कुल 8 लाख याद है मुझे, वो 5 और याद नहीं. सी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का कोई भी सम आता है ना, जस्ट टेक द पीवी फर्स्ट. लेकिन लीज एमएलपी का पीवी, ये एमएलपी तो है और क्या है. एमएलपी इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल. इसमें भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल है. कुपर और रो. चल प्रोसीड. अच्छा 8 लाख कितना? 8 लाख कितना? 54,712. अप्रॉक्स. क्या करो स्टेप नंबर 2 ना. स्टेप नंबर 2 करते चलो. Calculation of interest and principal. Here, opening balance, do you remember that leasing chapter column? Same column. Here, opening balance. और क्या आएगा इधर बताओ. Installment and closing. हाँ Installment and closing. हाँ नहीं, I'll tell you. Effective interest, correct? 10% rate. And interest rate. कोई interest, cash flows और closing balance.
same table. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Opening is my present value 854,712. Effective interest is 854,711 and cash flows are 2,40,000. Coupon is not an interest, sorry. Coupon is one of the cash flow we have. And you get a balancing amount here. बोलो कितना आएगा माइनस प्लस करके? हाँ 700,183. how much? 700,183. Can you continue the calculation till then? As we did in leasing. लास्ट वाले ईयर में इंटरेस्ट को हम बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं। कितना है लास्ट? Your articleship is over. So how you fill the exam form now? Courier? मेरा कैसा ओल्ड रजिस्ट्रेशन है ना मेरा, तो जिनका है ना उसमें साइट पे ना जिनका सिग्नेचर और फोटो नहीं आता है ना, उनको नहीं भेजना है उधर, और मेरा नहीं आता उधर। तो आई हैव टू पुट द फोटो, आई हैव टू पुट द स्टैम्प attested by chartered accountant and send it to Colaba. They had an option that if you're even if that photo doesn't come, तो तेरी हॉल टिकट इश्यू हो जाएगी, तेरी हॉल टिकट के पीछे तेरे को कोई सीए का अटेस्टेशन होगा ना तो भी चलता है। मेरा हॉल टिकट पे फोटो नहीं आया तो, But if you are old articleship, अगर इसमें फोटो नहीं है तो हॉल टिकट पे ऑटोमेटिकली नहीं ही आएगा ना। हाँ तो इसमें But that's not saying you don't have the need to do that. उसको भेजने की नहीं, जरूरत भेजना पड़ता है, भेजना लिखा हो पड़ता तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि एक अटेम्प्ट में मेरा भी नहीं आया था फोटो, था ही नहीं, बट उन्होंने ऐसे बोला था कि आपकी हॉल टिकट आपको मिल जाएगी, उसके पीछे नहीं, आपको send सीए it, की send अटेस्टेशन ले PDFs. लो, saying that she is only the one appearing for the exam and all of that. तो वो मेरा खाली फर्स्ट पेपर के दिन जो एग्जामिनर आते हैं क्लास में, उन्होंने खाली फर्स्ट डे वो चेक किया था मेरे हॉल टिकट के साथ, उसके बाद तो आगे से उन्होंने कभी वो पूछा ही नहीं लेटर के लिए। I used to carry it with me, but they never asked for it. In fact, they would not let me keep that piece of paper with me. बोलते आप इसको आपके बैग में रखो। हाँ वो अभी भी है। अमाउंट इसको लीजिंग की तरह ही है। डू यू रिमेंबर लीजिंग फर्स्ट एंट्री? ये पैसा मिलने वाला लेसर है। हाँ, तो पहली एंट्री क्या आएगी इसकी? इंस्ट्रूमेंट की पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? आई टेल यू। सी, एक मिनट देखो, ईयर 1, हाँ, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर हिम, पैसा मिलने वाला है। स्टाफ लोन डेबिट, हाँ, with a present value of 8,54,712, और लोन कितना दिया सर उसने? 10 लाख। डिफरेंस विल अराइज, हाउ मच डिफरेंस विल अराइज? टेल मी।
145 to 88. 145 to 88. This difference will be amortized over the 288. 288. This difference will be amortized over 5 years equally. Deferred cost. सर साल के एंड में क्या एंट्री आएगी? इंटरेस्ट. साल के एंड में इंटरेस्ट विल अक्रू. हाँ, तो एंट्री विल बी, ईयर एंड की एंट्री क्या आएगी सर? स्टाफ लोन विल बी डेबिटेड ना, नॉट क्रेडिटेड. पैसा मिलने वाला ना तेरे को, इंस्ट्रूमेंट का नाम ही आएगा, जस्ट लाइक लेसी अकाउंट डेबिट है कि नहीं? टू इंटरेस्ट, करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट 2,40,000 कैश अकाउंट डेबिट, 2,40,000 टू स्टाफ लोन. समझे आप लोग? टू लेसी जैसा. Now compare this with the sum of lessee. Same entry is there. Lessee debit to interest for a lesser and cash debit to lessee. Lessee के बदले यहाँ पर staff loan आ जाएगा. This last two entry should be repeated every year. And the interest figure will be copied from this table and cash flow will be copied from the table only. Over. Such a easy thing is there, amortized cost. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज आस्क्ड सेवरल टाइम इन सीए फाइनल. करेक्ट, मल्टीपल टाइम. चलो स्टार्ट. कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को लगता है अब इस बार फिर से आएगा. एंड यू नो हाउ मेनी टाइम इट इज बीन आस्क्ड? एवरी 2 आइटम दे आस्क कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट. एवरी 2 आइटम, 2-3 आइटम. इस बार नहीं है ना, अब आएगा कंपाउंड. इट्स अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन. यू नॉट नोटिस्ड इट इन द मॉड्यूल एंड पास पेपर. कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट इज अ रेगुलर क्वेश्चन द सीए फाइनल. नाउ व्हाट इज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट? अंडरस्टैंड. एंड हाउ टू रिकॉर्ड कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, दैट आल्सो अंडरस्टैंड. एक मिनट. कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सीयर. सुनो, ये है बंदा होल्डर और ये बंदा है इश्यूअर. गौर से देखो, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर इश्यूअर. मुझे बताओ, अगर ये बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर में, करेक्ट, तो होल्डर के लिए क्या रहेगा? फाइनेंशियल एसेट. इसके लिए फाइनेंशियल, ठीक है. सपोज यू इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स, तो फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी. एग्रीड? इन्वेस्टमेंट इन शेयर वॉलेट, फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी. इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस रिडीम होगा, तो 100% ये फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी. लेकिन मैं ऐसा बोलूं, इन्वेस्टमेंट्स इन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो इसके लिए फाइनेंशियल एसेट, इसके लिए दोनों रहेगा, लायबिलिटी भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा, दोनों के दोनों रहेगा, एक साथ कॉकटेल. क्योंकि जो इसका कूपन है वो फिक्स्ड कैश फ्लो है, पैसा देना पड़ेगा, और रिडम्पशन विल बी इक्विटी शेयर, फिक्स इक्विटी शेयर. तो सम पोर्शन विल बी इक्विटी, सम पोर्शन विल बी लायबिलिटी. दिस एंटायर लायबिलिटी, एंटायर इक्विटी, एंटायर इक्विटी, एंटायर इक्विटी. अगर उन्होंने ऐसा दिया है कि जो कूपन रहता है डिबेंचर्स पे, वो हम हर साल अक्यूमुलेट करके एट द टाइम, अक्यूमुलेट करके नहीं, यू विल पे एवरी ईयर. सपोज उसको पे नहीं करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दैट टर्म जहां पर हम इक्विटी देने वाले, तो हम उतने पोर्शन का भी इक्विटी ही देंगे, तो फिर पूरा इक्विटी, फिर लायबिलिटी है ही नहीं वो. To the extent it is obligation, it is a liability. It's a cocktail, in fact. It's a cluster of equity liability both. The question here is,
For an issuer can have a possibility of amortized cost, yes, and FATP. For issuer, should split the instrument between liability and equity initially. That I'm showing you. Very I can say master question I'm giving you. Suppose Delta Limited, एक मिनट हाँ, Delta Limited issued 6% convertible debentures of rupees 100 each. How many, sir? He issued 20,000 debentures of rupees 100 each. Correct? हाँ. इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ? The debenture will be converted into converted after 4 years. Conversion ratio 1:1. इक्विटी का फेस वैल्यू कितना रहेगा जब तुम कन्वर्ट करोगे? इक्विटी का फेस वैल्यू है 10 रुपया एक का. लेट्स पास एंट्री फॉर दैट. सर डिबेंचर कन्वर्ट होगा, कंपल्सरी कन्वर्टेबल है कि ऑप्शनल कन्वर्टेबल है? आंसर विल बी डिफरेंट. सपोज इट इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल, तो क्या करने का? सुन, स्टेप नंबर 1, पीवी ऑफ कैश फ्लो फॉर लाइबिलिटी होल्डर. पीवी ऑफ लाइबिलिटी विल बी 4 years ना. ईयर 1, 2, 3, 4. कैश फ्लोस 20 लाख 6%, 1,20,000. इज इट 1,20,000? चेक करो. PV factor, suppose market rate is 10% per annum. PV factor ये आएगा आपका PV. Calculate how much? Tell me how much. How much? 17,46,000. 17 lakh? 46,280. 80. Now, as per the act, the cash received on the instrument is 20 lakh and the present value of the liabilities, debenture or debt is 17,46,000. तो एक्ट बोलता है the difference between these two is known as equity. Yes, tell me the difference how much? $20 lakh minus 70 lakh, what is 1,000? 280. 2,53,720.
2,53,000 720. 20 ये निकालने के लिए 8 मार्क मिलता है 2,53,000 पीवी निकालो उसमें आप कैश माइनस करो स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ईयर opening balance effective interest this is a cash flow closing balance one two three four opening is 17,46,280 effective interest 10% 1,74628 एंड कैश फ्लो आपका पहला है 1,20,000 120 क्लोजिंग बैलेंस विल गेट इट हाउ मच How much? You can continue this table till the end.